14th sum, an aeroplane flies from A to B at a rate of 500 km per hour and back from B to A at the rate of 700 km per hour. The average speed is. अब यहाँ पे क्या है, A to B जा रहा है 500 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से और वापस आ रहा है 700 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से. एंड नाउ द थिंग इज, हम लोग यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने के लिए हार्मोनिक मीन यूज करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, तो हम लोग हार्मोनिक मीन यूज करेंगे, विच विल बी 2 अपॉन, क्योंकि एक बार गए 2 बार, वही डिस्टेंस आपने 2 बार ट्रेवल किया ना, 1 upon 500 plus 1 upon 700. Please find out your answer. It will be 2 upon 1200 upon 2 into 3,50,000 divided by 1200. Find out. And your answer is 583.33. That is B. Now 15th sum is really interesting. If a variable assumes the value 1, 2, 3, 4, 5 with the frequencies 1, 2, 3, 4, 5, then what is the arithmetic mean? So X is 1, 2, 3, 4, 5 and F is 1, 2, 3, 4, 5 and you have to find out arithmetic mean. Arithmetic mean for ungrouped data is summation fx upon summation f. तो ये fx हो जाएगा 1, 4, 9, 16, 25. इसकी एडिशन करेंगे आप. 5 plus 9, 14. 14 and this is 30, 20, 55. Is 55 divided by summation f, 9, 12, 14, 15. Your answer will be 11 by 3. A is your answer. अब ये 16, 17 जैसे सम्स बहुत बार आके जाते हैं एग्जाम्स में. Two variable x and y are given by y is equals to 2x minus 3. If the median of x is 20, what is median of y? Relation between x and y is set B का 16 sum, y is equals to 2x minus 3. x का मीडियन क्या है? 20. तो y का मीडियन निकालना है आपको. ये तो प्रॉपर्टी है हम लोगों की. In this case, median of y is 2 into median of x minus 3. So 2 into 20 minus 3. 40 minus 3. Your answer is 37. C is your answer. If the relationship between two variables u and v are given by 2u plus v plus 7 is equals to 0, and if arithmetic mean of u is 10, then find the arithmetic mean of v. Same hai. 2u plus v plus 7 is equals to 0. I'll write it as v is equals to minus 2u minus 7. Now, arithmetic mean of u as given by them is 10. तो mean of v कैसे आएगा? Minus 2 into mean of u minus 7. Minus 2 into 10 minus 7 minus 20 minus 7. Your answer will be minus 27. ये इस तरह के सम्स ना एग्जाम में बहुत, सीपीटी में ये बहुत ज्यादा आके गए हैं. Many times they have come in CPT.
Now 18, if x and y are related in this way, the mode of x is known to be 23. Find the mode of y. X minus y minus 10 is equals to 0. So y will be equal to x minus 10. Mode of x is, sorry, that is mode. तो आप ऐसे लिखोगे, mode of x is 23 है शायद. Yes. तो mode of y क्या होगा? Mode of y will be 23 minus 10, that is 13. So 13 is your answer for sum number 18. ये सारे प्रॉपर्टीज पे बेस्ड सम्स है. आप देखो, ये बिल्कुल भी देखो, ये ना थियोरी पे बेस्ड प्रैक्टिकल सम्स आते हैं. ऐसे बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि मैथ्स की थियोरी वैसी किसी को करने में इंटरेस्ट नहीं होता. मेनी टाइम्स पीपल थिंक थियोरी क्यों करने का, सम्स आते हैं ना सॉल्व करने को, बस हो गया. मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल आता है, बस हो गया. नहीं, लेकिन अगर आपको ये थियोरी याद नहीं होगी तो आपको ये भी नहीं करते आएगा. और थियोरी याद करने का एडवांटेज ये है कि बहुत बार प्रैक्टिकल सम्स थियोरी पे बेस्ड होते हैं और थियोरी सम्स प्रैक्टिकल पे बेस्ड होते हैं. थियोरी जो भी पूछी जाती है वो प्रैक्टिकल पे बेस्ड होता है. तो दोनों भी कर लेना चाहिए. अगर आपने एक टॉपिक करना है तो उसका थियोरी प्रैक्टिकल दोनों करना चाहिए. एंड बेस्ट मेथड टू स्टडी थियोरी इज राइट इट डाउन. You write it once, you will get the entire theory. Now see, 19th one. Geometric mean of x is 10 and geometric mean of y is 15. Find the geometric mean of x and y. Now we know that if z is equals to xy, then geometric mean of z is geometric mean of x into geometric mean of y. ये मैंने थियोरी में बताया था. ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x is 10 and y is 15, तो z का होगा 150. तो लॉग वॉग नहीं होगा, 150 होगा डायरेक्टली. ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए लॉग यूज करते हैं हम लोग. Now 20, if AM and GM of for 10 observations are both 15, then what is HM? अगर AM और GM दोनों इक्वल है तो HM भी इक्वल होगा. Your answer is C, because we know that AM is equals to GM only when all observations are same, and in that case AM is equals to GM is equals to HM. So in this 20th sum, HM is also 15. C. ये 5 मार्क का कोई सम नहीं होता हमको एग्जाम में. सम सिर्फ 1-1 मार्क के आते हैं, लेकिन इस तरह के भी सम्स आ सकते हैं. नाउ दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा. डेटा दिया है, लेकिन ये डेटा जो है वो डिसकंटिन्यूअस क्लासेस है. आपको इन्हें कंटिन्यूअस में करना पड़ेगा. तो यू विल राइट डाउन द क्लासेस टू बी 4.5 to 14.5, 14.5 to 24.5 and so on. फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी. एंड देन यू विल फाइंड आउट मीन एंड मीडियन. हम लोगों ने मीन और मीडियन निकालना ऑलरेडी सीख लिया है. यू कैन फाइंड आउट. क्वेश्चन 1, मीन एंड मीडियन फॉर दिस डेटा. डेटा को हम लोगों ने कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी, ये कंटिन्यूअस क्लासेस बनाए और ये आंसर क्या है? सी. नाउ नेक्स्ट, मीन एंड मोड. अभी इसको भी पहले कंटिन्यूअस करके लेना पड़ेगा एंड देन विल सॉल्व दिस. क्वेश्चन 3 इज द मीडियन एंड मोडल प्रॉफिट ऑफ द फॉलोइंग डेटा. प्रॉफिट उन्होंने बिलो 5, बिलो 10, बिलो 15 ऐसे दिया है. इसका मतलब ये है कि ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है उन्होंने.
हमको उसे कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा प्रॉपर डेटा में। तो वो क्या दिया है उन्होंने, below 5, below 10, below 15, below 20, below 25, below 30 ऐसे कुछ दे दिया है। Okay, then number of firms is 10, 25, 45. 10, 25, 45, 6, 45, 55, 62, 65. Okay, I've missed here one thing. ये क्या है, below 5, 10, 15, 20, 25, 30, and the frequency is 10, 25, 45, 10, 25, 45, 55, 62, 65. ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, हमें इसे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको क्लासेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, तो आपका क्लास इंटरवल भी 5 होगा, तो ये होगा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, और ये हो गया आपका x। Then we'll have f, that is frequency. ये तो 10 ही रहेगा, ये हो जाएगा 15। Now this is 25 minus 10 is 15. 45 minus 25 will become 20. This will become 10. This is 7. This is 3. Now you have the entire data. You have to calculate median and mode. अब क्योंकि डेटा आ गया है तो मीडियन और मोड तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन जो है वो प्रॉफिट इन 1000 है, तो आपका डेटा भी जो होगा दिस विल 0 to 5000, 5 to 10, 10 to 15 ऐसे आएगा। ये thousands में है, दिस इज इन thousands। तो फिर इसका मीडियन और मोड जो है that is C, 11,875 and 11,667. Now question number 4. Following is an incomplete distribution having modal marks 44 and you have to find out the missing frequency. No, you have to find out what would be the mean marks. This is very interesting. The data is 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80. $80 to $100. This is 5, 18. This is question mark. We don't know what is this. Then is 12 and 5. We don't know what is this, so I'll say let this be X. And they have said that mode is 44. अगर mode 44 है तो यही होगा modal class. क्योंकि अगर मोड 44 है तो वो 40 to 60 के बीच में ही लाई करेगा, तो वो इधर ही होगा। Modal class will be 40 to 60. 40 to 60 will be modal class. So frequency of the modal class is X. Frequency of previous class is 18 and frequency of the next class is 12. So your mode is L plus Fm minus F0 upon 2Fm minus F0 minus F1 into I. So L is 40 plus Fm क्या था, X minus 18 upon 2X minus 18 minus 12 into I is 20. And this is 44. This will be 4 equal to X minus 18 upon 2X minus 30 into 20.
अब ये कट नहीं होगा, just you will have to do cross multiplication here. So it will be 4 into x minus 30, 2x minus 30 is equals to 20 into x minus 18. 8x minus 120 is 20x minus 160. ये उधर चला गया, 160 minus 120 is 20x minus 8x. This will be ये x minus, this is 30. Sorry, ये 18 है ना? This will be 360. ये 360 minus 120 is equals to this. This will become 240. X will become 20. So your missing frequency here is 20. Now, once you have got the entire data along with the missing frequency, you can definitely find out your mean using the formula of mean. Formula of mean for group data is summation fxm upon summation f. अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो आ गया था 20, तो मीन निकाला, मीन इज 48. अब देखो ये ऐसे केसेस है जहां पे आप ऑप्शन ट्राई नहीं कर सकते. Now question number 5, the data relating to the daily wages of 20 workers is shown below. The employer pays bonus amounting to 100, 200, 300, 400, 500 to the wage earner in the group. Rupees 50 but not more than 75, 55, 55 but not more than 60 and so on during the festive month. What is the average bonus per wage earner? पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि पर वेज अर्नर के ग्रुप में कितने लोग हैं. तो using the tally marks 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, ऐसे करके हम लोग पहले उनका ये निकाल लेंगे 70 to 75. अब हम लोग उसकी पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. तो फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, अभी इसी डेटा से टैली मार्क के हिसाब से आएगी. तो 50 will come here, then 55 will come here, then 60, 58, 59. 60 will come here, 58, 59. 72, 65, 68. 72, 65, 68. 53, 50, 67. 53, 50, 67. 58, 63, 69. $74, 63, 61. $57, 62, 64. 57, 62, 64. Now your frequencies are 3, 5, 6, 4, 2. अब जिनके वेजेस इस ग्रुप में है उनको तो बोनस मिल रहा है, इसको बोनस मिल रहा है 100 रुपए का, 200, 300, 400, 500 रुपए तक का बोनस इनको मिल रहा है. We don't want to find out average of the number of wage earners. No, that is not our interest.
वी वांट टू फाइंड आउट द एवरेज बोनस। तो ये आपके पास हो गया अनग्रुप डेटा। अब 50 to 655 जिनको वेज मिल रहा है उनका बोनस 100 रुपए है। तो 100 रुपए का वेज कितने लोगों को मिलने वाला है? 3 लोगों को। वैसे ही 200 का वेज 5 को, 300 का 6 लोगों को, 400 का 4 लोगों को और 500 का 2 लोगों को। यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज वेज। सो मीन विल बी summation fx upon summation f. Now you will get the average wage. Find out mean. So question 5 का एवरेज क्या होगा? 285। हम लोगों ने जब इसका एवरेज निकाला है तो ये आ गया 285। ये ऐसे ही घुमा फिरा के पूछते हैं। और प्रॉब्लम क्या है स्टैटिस्टिक्स में, आप ऑप्शन भी नहीं ट्राई कर सकते उसमें। नाउ द नेक्स्ट इज फाइंड थर्ड क्वार्टाइल एंड 65th परसेंटाइल। तो ये आपको आता है, हम लोगों ने पहले सीखा है, वीडियोस भी अपलोड किए हैं कि किसमें थर्ड क्वार्टाइल 65th परसेंटाइल, you know how to find out. Now 7th, for the following incomplete distribution of 100 people, median mark is known to be 32. अगर मीडियन आपको पता है कि 32 है तो आपको ये भी पता है कि 30 to 40 जो है वो मीडियन क्लास है। X is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. और फिर फ्रीक्वेंसीज 10x 25 30, 10x 25 30 y, and then the last one is 10. आपको अगर पता है कि मीडियन 32 है तो ये है आपका मीडियन क्लास। 30 to 40 is median class. So your median is 32. अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L plus n/2 minus CF upon F into I. अब यहाँ पे कैपिटल N जो है वो 100 है, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है। तो अगर आप इसको ऐड करोगे 10 plus 25 35 65 75, so you will get x plus y plus 75 is equals to 100. So x plus y is 25. ये आपको मिल गया। और यहाँ पे मुझे मिलेगा 32 is equals to 30 plus 50, 100/2 is 50 minus CF क्या है? Cumulative frequency of the previous class, 10 plus x, 35 plus x, ये हो जाएगी 35 plus x upon frequency 30, class interval 10. This will be 2 is equals to 15 minus x upon 3. तो ये आपका और एक इक्वेशन आ जाएगा। 6 is equals to 15 minus x. So x will become 9. अगर x 9 है तो 9 plus y is equals to 25. तो y क्या हो जाएगा? 16. तो आपको क्या निकालना है? फाइंड द मीन। अब आपके पास दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आ गए, ये x 9 है और ये y है 16. Now you can definitely find out mean using the formula summation fxm upon summation f. क्वेश्चन नंबर 8, 7 का तो आंसर आया 31.30, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गए तो मीन निकाल सकते हैं आप। नाउ मोड इज 66। अगर मोड 66 है तो मॉडल क्लास होगा 60 to 70, ये होगा आपका मॉडल क्लास। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मिसिंग मोड के लिए बताया था आपको। यू कैन फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी हियर। ये आपका मॉडल क्लास हो जाएगा
ये है प्रीवियस क्लास, ये है नेक्स्ट क्लास। (28 minus 22 upon 2 into 28 minus 22 minus, we don't know this, so this is x into 10. Now you can find out the value of x. अच्छा, उन्होंने x भी नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है कि आप x निकालो, x मिसिंग फ्रीक्वेंसी आने के बाद आप वो मीडियन निकाल लो उसका। फाइंड आउट मीडियन। They have said mode is 66. If mode is 66, 66 is 60 plus, क्योंकि ये मॉडल क्लास हो गया है, तो 60 plus 28 minus 22 upon 2 into 28 minus 22 minus x into 10. 6 is equals to 6 upon 56 minus 22 minus x into 10. It will 6 and this 6 will get cancelled. 56 minus 22 will be 34 minus x is equals to 10. ये 34 हो जाएगा, 34 minus x will be equal to 10. So x will be equal to 24. अब ये 24 है. Now we have to find median less than cumulative frequency. 8, 24, 46, 74, 110. So your median will be 110 by 2. That is 55th term. अब 55th term यहाँ पे कहाँ आएगा? Same class. So it will be 60 plus 55 minus 46 upon 28 into 10. 55 minus 46, 9. 9 into 10, 90 divided by 28. It will be 3.214. Your answer will be 63.214. तो 63 के आसपास यही है, 62.32, क्योंकि ये तो बहुत बड़े बड़े हैं, सबसे पास वाला नंबर यही है। अगर नन ऑफ दीज होता तो हम लोग नन ऑफ दीज को टिक करते, लेकिन यहाँ पे 62.32 है, तो सबसे 63.2 के सबसे पास, दिस कैन बी राउंडेड अप टू 63, और उसके सबसे नियरेस्ट नंबर 62 ही है, तो सी इज योर आंसर। अगर यहाँ पे उन्होंने आपको नन ऑफ दीज दिया होता तो हम लोग वो नन ऑफ दीज को टिक करते, लेकिन नन ऑफ दीज नहीं दिया है तो नियरेस्ट को टिक करना पड़ेगा।